domain, setting, diglossia, polyglossia, code switching. I've already discussed about all these things, but today I'll be teaching you in detail. I'll be telling you what is domain, what is setting, what is diglossia, what is polyglossia, what is code switching, what is accent, what is difference between accent and dialect, and what is lexical borrowing. Further, I'll be teaching you about vernacular language, how vernacular language is formed, and what is standard language. You have already studied, I think you have already studied about all these technical topics, but today I'll be teaching you in clear manner. I'll be teaching you each and everything. Idea will be cleared, and you can even write whatever you want on these topics. You can even write 2-3 pages easily. I'll be giving you a lot of ideas, especially related to social linguistic. First of all, what is social linguistic? Fozia, if you have any idea, let me know. Amber, if you have any idea, let me know. What is social linguistic? सर सोशल लिंग्विस्टिक्स जिसमें हम सोशल लोगों के साथ सोशल होके लैंग्वेज को मींस इस तरह ये हमने पढ़ा था पहले, मगर मुझे बताना नहीं आ रहा, ये और बता दी. Social linguistic, and then Fozia, you, what is social linguistic? एक तो होती है सोशियोलॉजी. We have social linguistic and we have sociology. We'll be seeing both. एक होता है सोशल लिंग्विस्टिक और एक होता है सोशियोलॉजी. बट I'll be telling you about both. Whenever we talk about social linguistic, we study to what extent. Sorry, I'm sorry. I was actually arranging my mic. Yeah, this social linguistic. Yes. Social linguistic. I think it's about social, cultural, geographical language, and there is we have actually a relationship, as we have relationship with our this customs, traditions, social relationships in society. It's regarding that. No. Mean to say that which we acquired from society. You are just telling aspect of social linguistic. The language actually, which actually we acquired from our society. That is, I think, social linguistic is about that. Social linguistic is, it is a study of language. When we study language with respect to society, mean to say to what extent society is going to affect language. We study how language is formed, how language is changed, how dialect is changed, how sociolect is formed, how idolict is formed, how dialect is formed, how standard pronunciation is formed when society occurs, when society come across, and when society affects, to what extent language is changed. हम इसमें ये फौजिया स्टडी करते हैं कि जब सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है तो लैंग्वेज में क्या क्या मसाइल आते हैं. हमने देखना है कि सोसाइटी कितनी हद तक लैंग्वेज को अफेक्ट करती है. इस स्टडी को कहते हैं सोशल लिंग्विस्टिक. दूसरी साइड पे एक स्टडी होती है सोशियोलॉजी की. सोशियोलॉजी का मतलब होता है कि लैंग्वेज कितनी हद तक सोसाइटी को अफेक्ट करती है. सोशियोलॉजी में क्या देखते हैं कि लैंग्वेज का इंपैक्ट क्या है, किसके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर. लेकिन इसमें वाइस वर्सा, इसमें उल्ट हम इसको रिवर्स कर लेते हैं, यानी सोसाइटी कितनी हद तक लैंग्वेज को अफेक्ट करती है उसको कहते हैं सोशल लिंग्विस्टिक.
In social linguistic, we study how language is going to, how society is going to affect our language at dialect level, at pronunciation level, at standard language level, at second language level, at foreign language level, and even at I have discussed about gender lect level. अब एक और मैंने रिसेंटली मैंने आर्टिकल स्टडी किया है, तो उस आर्टिकल में एक फीमेल अमेरिकन राइटर है और वो इलिनॉय यूनिवर्सिटी है अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन में वो पढ़ाती है इलिनॉय यूनिवर्सिटी के अंदर, और उस यूनिवर्सिटी की उसका नाम है डिब्रा, और ये जो डिब्रा टैनन इसका नाम है, डिब्रा टैनन नाम यूज नोट कर लें, डिब्रा DEBRAH, डेब्रा टैनन। ये डेब्रा टैनन जो है, इसने आप लोगों को ये डिस्कवर किया है कि एक जेंडर लेक्ट भी होता है। क्या होता है? जेंडर लेक्ट। इससे पहले वर्जीनिया वुल्फ को अगर आपने स्टडी किया हो, वर्जीनिया वुल्फ ने फीमेल की प्रॉब्लम बताई थी, ठीक है, और वो क्या किस में लिखती थी? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, और उसने जस्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज ही डिस्कवर की थी, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। उसने कहा था ना कि शेक्सपियर की अगर कोई बहन होती तो शेक्सपियर की तरह उसे भी कमरा मुयसर होता, लाइब्रेरी मुयसर होती, वो पढ़ सकती, वो आइसोलेट हो सकती, वो अपनी वॉइस को बता सकती, तो फीमेल भी बड़ी अच्छी राइटर्स बन सकती हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखती थी कौन? वर्जीनिया वुल्फ। तो ये कंटेम्प्रेरी राइटर है, लिंग्विस्ट है, प्रोफेसर भी है, ये नाम है इसका, क्या नाम है? डेब्रा टैनन। डेब्रा टैनन कहती है कि एक जेंडर लेक्ट होता है, मेल और फीमेल की लैंग्वेज में कोई डिफरेंस, इतना डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस ये होता है कि वो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो हैं उनके और होते हैं और उनके और होते हैं। मतलब जब फीमेल एक बात करती है तो वो बड़ी इंटीमेसी शो करती है, कनेक्शन शो करती है, माइल्ड लैंग्वेज यूज़ करती है, सॉफ्ट वर्ड यूज़ करती है, और वो ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लोग भी उससे कि ये महज़ब बोलेगी, ठीक है, ये मॉडरेट लैंग्वेज यूज़ करेगी, सॉफ्ट वर्ड यूज़ करेगी, लाइट वर्ड यूज़ करेगी। और मोस्टली आपने देखा होगा तो फीमेल जब भी बोलती हैं तो वो कोशिश करती हैं वो उर्दू में बात करती हैं, ठीक है। हालांकि पंजाबी लैंग्वेज होती है उनकी, आपस में कभी कभी वो पंजाबी में बात कर रही होती हैं, लेकिन वो अक्सर जब भी किसी मेल से या किसी से बात करती हैं तो वो बड़े सिलेक्टेड वर्ड्स उनके होते हैं, डिक्शन बड़ा सिलेक्टेड डिक्शन यूज़ करेंगे, और सिंटैक्स भी एक लाइट सर सा माइल्ड। जी सर, काइंडली जरा एक दफा रिपीट कर दीजिएगा। आपने भी बताया ना सोशियोलॉजी में सोशल लिंग्विस्टिक, मैं बता देता हूँ। और सोशो लिंग्विस्टिक, ये देख लें, सोशो लिंग्विस्टिक, सोशो लिंग्विस्टिक और सोशियोलॉजी में ये फ़र्क है। सोशो लिंग्विस्टिक में वी स्टडी, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज व्हेन वी स्टडी how society is going to affect language, in what and how, what and what ways society is going to affect, or society affects language, या society के affects जो हैं language के ऊपर जितने भी affect वो करती है, या कहीं पे language change हो रही है, या कहीं modification हो रही है, या कहीं dialect बदल रहा है, या कहीं bilingual हो रहा है इंसान, या कोई plurilingual हो रहा है, ठीक है, या वो कहीं पे कोड स्विचिंग कर रहा है, या लिक्सिकल बारोइंग कर रहा है, एक्सेंट बना रहा है, डायलेक्ट बना रहा है, वेरिएशन आ रही है लैंग्वेज में, रजिस्टर चेंज हो रहा है, ठीक है, डिग्लोसिया आ रहा है, पिजन बन रहा है, क्रोल बन रहा है। एवरीथिंग विल बी स्टडी विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, हाउ सोसाइटी इज गोइंग टू अफेक्ट लैंग्वेज। सोसाइटी आएगी तो पिजन बनेगा, कम्युनिटी सोसाइटी आएगी तो वो क्रोल बनेगा। in societies, in different societies, as the dialect and of course the modification Yes, and changes. bilingualism and code switching and pidgin languages, of course according to society, Yes. will We be study. there. We study We will impact of society, effect of society in we language. use bilingual, Bilingual, plurilingual, and pidgin monolingualism. सुन ले, मुझे सुन ले काइंडली। Bilingualism, plurilingualism, monolingualism, code switching, code mixing, dialect, accent,
उसके बाद वर्नैकुलर लैंग्वेज, स्टैंडर्ड वैरायटी, वैराइटीज ऑफ लैंग्वेज, सोशियोलिक्ट, आइडोलिक्ट. वी इवन स्टडी व्हाट इज डोमेन, सेटिंग, डिग्लोसिया, पॉलीग्लोसिया, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग. वी इवन स्टडीड रजिस्टर. We even study what is crawl. We even study what is pigeon. Whatever variety occurs due to society. जो सोसाइटी की वजह से जो लैंग्वेज के अंदर चेंजेस आएंगी, वी स्टडी अंडर द हेडिंग ऑफ सोशो लिंग्विस्टिक. आपने देख लिया होगा, काफ़ी वास्ट टॉपिक है. और इसको मज़ीद ये भी कहते हैं, इट इज़ अ फॉर्म, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अप्लाइड लिंग्विस्टिक. अप्लाइड लिंग्विस्टिक तो बहुत वसी है फौजिया. आप कह लें कि एक बहुत बड़ा एक बिल्डिंग हो और उसमें एक छोटा सा पार्ट जो है वो आपका सोशो लिंग्विस्टिक है. बट अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज, इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. Even in applied linguistics, you will be having clinical linguistics, you will be having neurolinguistics, you will be having forensic linguistics, you are having all the pedagogies related to language, applications of language, all the problems related to language, all will be studied under the heading of applied linguistics. अप्लाइड लिंग्विस्टिक तो बहुत वसी टर्म है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट जो है वो सोशो लिंग्विस्टिक है, और वो ही इतना वसी है कि मैंने जितने आपको ये टॉपिक बताए हैं इनके ऊपर डिफरेंट बुक्स हैं. Since I have studied all these books and articles related to all these topics, I will summarize them so you people can easily understand all these topics. चूंकि इन चीज़ों को मैंने स्टडी किया हुआ है, मैं आपको इसको समराइज कर दूंगा. जो अगर ये 50 बुक्स के ऊपर भी कंसिस्ट करते हैं टॉपिक, तो मैं आपको इन सब की समरी बता दूंगा, आपको याद हो जाएंगे, आप अपने लफ्ज़ों में लिख सकेंगे. सर एक मिनट, ये भाई सोशल लिंग्विस्टिक के बाद सोशियोलॉजी का जरा डेफिनेशन बताएं जो आपने अभी बताई थी. Sociology mean, in sociology we study effect of language on society. मैं यहाँ लिख देता हूँ, सोशियोलॉजी के ऊपर हम स्टडी करते हैं कि लैंग्वेज किस तरह से अफेक्ट डालती है सोसाइटी के ऊपर. हमारे पास एक सोसाइटी है, अगर वहाँ के लोग मतलब लैंग्वेज जो है वो पढ़ जाते हैं कुछ, तो उन सोसाइटी को वो कैसे चेंज करते हैं, सोसाइटी के अंदर फिर क्या क्या चेंजेस आती हैं, डेवलपमेंट क्या क्या आती हैं, चेंजेस क्या क्या आती हैं. यानी ये क्या करता है, ये लैंग्वेज इम्पैक्ट करता है सोसाइटी को. मतलब यहाँ से कोई बंदा आ जाए, कोई कुछ लोग जो हैं वो बाहर से आ जाएं, तो आपके साथ वो मिक्स हो जाएंगे, कुछ वो लैंग्वेज जो आपकी लैंग्वेज को इम्पैक्ट करेंगे. तो इसका मतलब यह है कि लैंग्वेज जो है वो कितनी हद तक सोसाइटी के ऊपर अफेक्ट करती है. जैसे हमारे लोग जो हैं, हमारे लोगों की अक्सर जो मादरी लैंग्वेज है वो पंजाबी है, लेकिन हमने देखा कि इंग्लिश जो है वो भी हमें इम्पैक्ट कर रही है सोसाइटी हमारी को. और साथ साथ वो किस वजह से इम्पैक्ट कर रही है हमारी सोसाइटी को, उसकी कुछ नॉर्म, उसकी प्रीरेक्विजिट्स हैं. मतलब वी नीड टू इंटरेक्ट विद द पीपल इन इंग्लिश लैंग्वेज, we want to do business in English language, we have to write official letters in English language, we have to business in English language, we even want to learn technology in English language. तो ये वो कौन कौन से causes हैं जिनकी वजह लिंग्वा फ्रैंका बन गई है लैंग्वेज. तो लैंग्वेज कितनी हद तक सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है, इसमें हम लैंग्वेज को देखते हैं, उसमें हम सोसाइटी का देखते हैं. तो सोसाइटी जब इम्पैक्ट करती है तो वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि इंग्लिश एक लोकल पीपल जो हमारे वो उर्दू बोलें तो वो ऐसे लग रहा होता है पंजाबी बोलते हैं. वो उनका डायलेक्ट है. वो क्या है, उनका डायलेक्ट है. प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है सिर्फ प्रोनाउंसिएशन कि वो प्रोनाउंस कैसे कर रहा है वर्ड, बस. यानी एक्सेंट का ताल्लुक होता है सिर्फ प्रोनाउंसिएशन से. डायलेक्ट जब आता है तो प्रोनाउंसिएशन भी साथ इंक्लूड होता है, वोकैबुलरी भी, उसके सेंटेंसेस भी, और उनकी रीजनल लैंग्वेज के जो सिलेक्टेड वर्ड्स होते हैं वो भी इम्पैक्ट करते हैं. डायलेक्ट के साथ वो भी मिक्स्ड होते हैं. मिसाल के तौर पर अब देखिए, पंजाबी जो है, पंजाबी को अगर हम डिफरेंट एक्सेंट के साथ बोल रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रही हैं, हम अच्छे से अच्छा जितना इंसान पढ़ा होता है तो और उसने
स्टडी किया होता है लैंग्वेज को थोड़ा बहुत, तो वो अच्छे एक्सेंट से बोलने की कोशिश करता है। एक्सेंट का ताल्लुक सिर्फ प्रोनाउंसिएशन से। बात को गौर से समझिएगा। एक्सेंट के मुताबिक वो पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सेंट एंड डायलेक्ट। एक्सेंट इज जस्ट रिलेटेड टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लैंग्वेज। यू आर प्रोनाउंसिंग लैंग्वेज वट एवर रूल ऑफ द लैंग्वेज, जो भी रूल्स हैं उसके मुताबिक आप प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज जस्ट रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन। बट वेन एवर यू टॉक अबाउट द डायलेक्ट, डायलेक्ट अपने अंदर उस इलाके की वोकैबलरी भी रखता है और उसके रीजनल जो वर्ड होते हैं वो भी अपने अंदर रखता है और प्रोनाउंसिएशन भी अपने अंदर रखता है। अब पंजाबी को देख लें, लाहौर में जो पंजाबी बोली जाती है, मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। लाहौर में जो पंजाबी बोली जाती है, अगर मैं बोलूं, फौजिया बोले, अंबर बोले या नाजिया बोलें या जो भी बोलें हमारे स्टूडेंट, अब ये बोलेंगे पंजाबी तो ये प्रोनाउंसिएशन से जो बोल रहे हैं, स्टाइल से जो भी बोल रहे हैं, ये उसका सिर्फ एक्सेंट है। अगर ये किसी रीजनल लैंग्वेज इलाके की पंजाबी बोलेंगे तो आप मुझे बताएं कि उनके कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, अल्फाज, उनकी सिलेक्टेड वोकैबलरी आपको समझ नहीं आएगी। यू गो टू मीन टू से दैट कि उनके लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं, उनके अपने सिलेक्टेड लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं। आप उनको पहले जाने बगैर आप उसको पता, उनके रीजनल एक उनका डायलेक्ट होता है, उसके अंदर उनके रीजनल मतलब वोकैबलरी होती है, साथ प्रोनाउंसिएशन भी उसका होता है। टॉक अबाउट द सराइकी लैंग्वेज, इट इज आल्सो अ डायलेक्ट ऑफ पंजाबी। टॉक अबाउट सर्टन अदर रिमोट एरिया ऑफ like village area, they are outskirt area of our city. Just go to them, you will not able to understand their language. They will speak in dialect. They are speaking Punjabi but they have different dialect. वो कोई और ही वैरायटी लैंग्वेज की आपके सामने रखेंगे और उनके सिलेक्टेड जो वर्ड्स होंगे आप उनको समझ नहीं सकेंगे, साथ प्रोनाउंसिएशन भी उनका चेंज होगा। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन। एक्सेंट का ताल्लुक सिर्फ प्रोनाउंसिएशन से। एज लॉन्ग एज यू आर जस्ट प्रोनाउंसिंग समथिंग और यू आर चेंजिंग प्रोनाउंसिएशन, यू मे अंडरस्टैंड लैंग्वेज। बट वेन एवर डायलेक्ट इज चेंज, it's difficult to understand. You can understand but it will be little bit difficult for you to understand. मिसाल के तौर पर मैं उर्दू बोलता हूँ, आप एक उर्दू जो है वो इंडियन जो है वो भी एक डायलेक्ट ही है, उर्दू के जैसा ही है जो हिंदी बोलते हैं। अब वो उसके अंदर उन्होंने अपने इलाके के जो वर्ड डाले हुए हैं, ये हमारी परंपरा है। अब ये हमारी तो ये तो हमारा उर्दू का लफ्ज़ है, हमें पता है, और आगे वो परंपरा कह देते हैं, हमें उसका पता है, ये उसके इलाके का रीजनल एक वर्ड साथ डालते हैं। तो एक डायलेक्ट के अंदर क्या होता है, वो वैरायटी कैसे बनती है, उसके अंदर उसके सिलेक्टेड वर्ड्स होते हैं, इलाके का रीजनल उनका डायलेक्ट होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है ख़ास। तो वो सारे दे ऑल एडेड अप मेक्स डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन लिसनर्स टू अंडरस्टैंड इट, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। डोमेन होता है ख़ास एरिया, मतलब एक मैरिज का एक ख़ास डोमेन होती है, उसके ख़ास वर्ड होते हैं मैरिज पे जब आप जाते हैं, ठीक है। एक नावल की एक ख़ास लैंग्वेज होती है, लिटरेचर की, और उसके बाद लिंग्विस्टिक की ख़ास डोमेन होती है, और उसके अलावा आप कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कोई डॉक्टर से रिलेटेड कोई फील्ड है तो उसके हॉस्पिटल की लॉयर लॉ की, ये सारी उसकी डोमेन है लैंग्वेज की। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट डोमेन, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स एज वेल। आई हैव ऑल दीज नोट्स। सो डोमेन क्या है? डोमेन इज अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ लैंग्वेज where you use specific word. When you go to marriage, you will use selected word for marriage because domain is different. You talk about the hospital, separate domain. Talk about the court, separate word. Talk about, even you can't, they use ancient word, archaic words. Mostly आप देखेंगे, आप जाएं ज़रा लीगल लैंग्वेज जो है उसकी एक अपनी डोमेन है, आप उसमें जाएं तो उसके कुछ अपने आर्खेक वर्ड होते हैं, पुराने वर्ड इस्तेमाल करते हैं।
या आप किसी और फील्ड में चले जाएं, कोई लिटरेचर की फील्ड में उसकी अपनी डोमेन है. सो वी स्टडी डोमेन्स इन लैंग्वेज कि ये भाई कौन सी डोमेन है, किस डोमेन में. हम कहीं शादी पे खड़े हैं, हम किसी तकरीब पे आए हुए हैं, हम कोई और टॉपिक लिटरेचर से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, नावल से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, कोर्ट से रिलेटेड, लॉयर की लैंग्वेज से रिलेटेड, लॉज की लैंग्वेज से रिलेटेड. सो दे हैव दे डिफरेंट डोमेन. सेटिंग का मतलब होता है कि सेटिंग कैसी हो रही है उसकी, मतलब हाउ वी आर गोइंग टू सेट आवर नरेटर्स. ये बात कौन कर रहा है, फर्स्ट पर्सन कर रहा है, सेकंड कर रहा है, कौन सी जगह पे कर रहा है, किधर कर रहा है. तो ये उसकी सेटिंग से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं इसमें. डिग्लोसिया. व्हाट इज डिग्लोसिया? डिग्लोसिया का मतलब होता है, डिग्लोसिया के अंदर दो वैरायटीज होती हैं लैंग्वेज की. एक होती है लो वैरायटी, ठीक है, एक होती है हाई वैरायटी. मैं सिर्फ वैरायटी को वी लिख रहा हूं, आप समझ जाएं. डिग्लोसिया के अंदर दो वैरायटीज लैंग्वेज की मौजूद होती है. सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं. हो सकता है वो आपसे यही पूछ लें कि व्हाट इज डिग्लोसिया, डिफाइन डिग्लोसिया, डिफाइन एक्सेंट, डिफाइन डायलेक्ट. इनमें से क्वेश्चन आने जरूर हैं. लो वैरायटी, लैंग्वेज की वो लो वैरायटी जो हम अमूमन यानी यूजुअल हम इनफॉर्मल प्लेस के ऊपर यूज़ करते हैं. फॉर्मल, जब हम फॉर्मल होते हैं इसको यूज़ नहीं करते लो वैरायटी को. मिसाल के तौर पर पंजाबी का डायलेक्ट ले लें. वो लोग जो लोकल एरिया में रहते हैं, जो लोकल लोग हैं यहाँ के, उनके क्या लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज है एक जंगली लैंग्वेज हम उनको कहते हैं. अब वो देखें, आप गौर करें कि अगर वो हमारे साथ बैठे हों तो वो पंजाबी भी हमारे जैसी बोलने की कोशिश करते हैं कि एट लीस्ट वो जो उसकी पंजाबी की हाई वैरायटी है उसको इस्तेमाल करेंगे. लेकिन जब आपस में बात करेंगे तो वो अपनी वो लो वैरायटी की जो पंजाबी है उनकी, वो जो लोकल पंजाबी है या जो उनके इलाके की रीजनल डायलेक्ट की पंजाबी है उनकी, वो उसमें बात कर रहे होते हैं. उसे कहते हैं लो वैरायटी. व्हेन टू वैरायटीज दे गो साइड बाय साइड, one place you have to speak in low variety and second place you have to speak in high variety, this is called diglossia of language. इसको कहते हैं डायग्लोसिया. डिग्लोसिया फॉर्म कैसे होता है, कैसे ज़रूरत पड़ती है, इसमें दो वैराइटीज़ मौजूद होती हैं. बेयक वक्त आपको दोनों आती होती हैं. वन इज़ अ हाई वैरायटी ऑफ लैंग्वेज एंड सेकंड इज़ लो वैरायटी फॉर ऑफिशियल पर्पस, फॉर फॉर्मल पर्पस, फॉर क्लास, फॉर स्कूल, फॉर कॉलेज, फॉर विद स्पेसिफिक पीपल विद बॉस यू यूज़ हाई वैरायटी. But whenever you go in your local area, you start speaking in low variety. यहां तक समझ आया तो मुझे बताएं, मैं दोबारा रिपीट करने के लिए तैयार हूं. अंबर आप बोल ही नहीं रही. अंडरस्टैंड. डिग्लोसिया लो वैरायटी, मैंने आपको लोकल मिसाल दी. आप ज्यादा मिसाल इसकी दे सकते हैं अरबिक लैंग्वेज. जो इजिप्ट में अरबिक लैंग्वेज बोली जाती है, या जो जॉर्डन या इस तरह के इलाकों में जो अरबिक लैंग्वेज बोली जाती है, दुबई में या इस तरह के इलाकों में, अब उनके जो लोकल मतलब जो उनके विलेज हैं या वहाँ पे जो अरबिक लैंग्वेज बोली जाती है वो है उसका डिग्लोसिया है. उसकी दो वैरायटी हैं अरबिक की. एक है लो वैरायटी और एक वैरायटी उनकी स्टैंडर्ड वैरायटी है, हाई वैरायटी, जो आपको सऊदी अरेबिया के जो ऑफिशियल पर्पस है उनमें इस्तेमाल होती है, ऑफिशियल मामलात में इस्तेमाल होती है, ज़्यादा सऊदी अरेबिया में इस्तेमाल होती है. और उसके इस तरह के दूर दूर के जो अरबिक इलाके हैं उनमें जो बोली जाती है वो लो वैरायटी. ये जो दोनों वैरायटी साथ साथ चलती हैं, वो भी सीखते हैं और दूसरी भी उनको आती होती है. जैसे हमें उर्दू जो है उर्दू आती है, और उर्दू की कोई लो वैरायटी भी कोई बोल रहा होगा, आपने देखा होगा कुछ उर्दू ऐसे बोलते हैं जो ऐसे लगती है जैसे पंजाबी होती है. तो हम ऑफिशियल पर्पस के लिए हमेशा क्या उर्दू इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरे में फिर शुरू हो जाते हैं जो हमारी लो वैरायटी की लैंग्वेज है. लेकिन सराइकी को कह सकते हैं या हाँ, कह सकते जो हैं. मुझे समझ लगी सराइकी लाइक कि उर्दू वो बोले हमें से, हाँ जी. लेकिन अगर उन्होंने फिर अपनी कोई बात करनी है अपनी कोई पर्सनल, तो वो दे विल ऑफ कोर्स यूज. फौजिया इधर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझाऊंगा. तो कोड मिक्सिंग हो जाएगा ना, लाइक अरबिक, मेरी बात सुने, अरबिक जो है ना,
अरबिक लैंग्वेज में ये चीज़ मौजूद है। अरबिक में एक होती है लो वैरायटी मौजूद है। आप उनके गांव में जाएं, वो लो वैरायटी बोलते हैं, ऐसी अरबिक बोलते हैं कि आप भी समझ जाएंगे। वो इस तरह के ऐसे चुन के वर्ड बोलेंगे, वो आप भी समझ जाएंगे। लेकिन उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो, चूँकि उसमें पूरा सेंटेंस एक बनाना पड़ता है, तो उनकी एक हाई वैरायटी भी मौजूद है। और ये इसकी मिसाल जो है अक्सर आपको बुक्स में मिलेगी। इवन कि आप पढ़ेंगे एक डिग्लोसिया को तो आपको शायद यही मिसाल, यानी बड़े बड़े आर्टिकल्स के ऊपर मैंने पढ़ा है, यही मिसाल दी हुई है कि अरबिक जो है लो और हाई वैरायटी में मौजूद है। और दूसरी मिसाल हम पंजाबी की दे सकते हैं। अब पंजाबी की चूँकि बहुत सारी वैरायटी मौजूद हैं, तो पंजाबी को अगर आप देखें तो पंजाबी जो हमारे लाहौर में बोली जाती है वो ठीक है, स्टैंडर्ड पंजाबी ठीक बोलते हैं, वैसे भी सेंटर है पंजाब का वो। अब ज़रा देखें, ज़रा वहाँ पे लाहौर वाली पंजाबी देखें और हमारे जो लोकल इलाकों की जो वैरायटी है पंजाबी की, हम उसे कहेंगे एक ये हाई पंजाबी, हाई वैरायटी, और दूसरी लो वैरायटी। अब वो बंदा जो है अब लाहौर में जाए, लोगों के साथ मिले, गपशप लगाए, वो फार्मल हो या कहीं बोल रहा हो, वहाँ पे ये यूज़ करे स्टैंडर्ड वैरायटी, और जब वो अपने इलाके में आए तो वहाँ पे ये यूज़ करने लग जाए अपने लोगों में, तो वो डिग्लोसिया को इस्तेमाल कर रहा है। यस सर, अब समझ आ गई है मुझे बहुत अच्छी तरह से। अपने लफ्ज़ों में बताएं। लाइक हमारे घर के सामने रहते हैं, वो भी पंजाबी हैं, मगर उनका जो बोलने के वर्ड्स है ना वो डिफरेंट है हमसे। तो इस तरह हम उनकी तरह बात करने की कोशिश करते हैं, वो हमारी तरह कभी बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह लाहौर में भी एंज करके बात करते हैं, एंज ना कर, तो हम इस तरह नहीं बोलते ना, वो डिग्लोसिया इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मेरी खाला रहती है अच्छा। तो वो पोली डिग्लोसिया की कोई मिसाल, क्योंकि हमारे इलाकों में तो इतनी लैंग्वेज की वैरायटीज़ मौजूद नहीं है, बस एक ही वैरायटी है। और जहाँ पे यानी ज़्यादा लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, मिसाल के तौर पर जैसे अब कनाडा है, वहाँ पे स्पेनिश भी बोली जाती है, और वहाँ कनाडा के अंदर स्पेनिश भी चलती है, फ्रेंच भी चलती है, इंग्लिश भी चलती है। और इंग्लिश और फ्रेंच तो दोनों उसकी मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, दोनों यक वक्त। अब ऐसे इलाकों में जहाँ पे 4, 5, 5, 6 लैंग्वेज मौजूद हों और उनकी भी फिर आगे वैरायटीज़ मौजूद हों, तो उसे कहेंगे पोलीग्लोसिया। पोली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। होप यू गॉट द पॉइंट। मैंने उसके साथ ही रिलेट करके आपको समझा दिया है कि पोलीग्लोसिया कैसे बनेगा। पोलीग्लोसिया कैसे बनेगा? इफ यू हैव मल्टीपल लैंग्वेज एंड दीज मल्टीपल लैंग्वेज हैविंग फर्दर सब डिविजन्स, फर्दर वैरायटी लाइक लो हाई, और उसमें लो और हाई भी हो। मैंने आपको बताया था कि हाई वैरायटी को क्या कहते हैं, याद करें, मैट्रिक्स लैंग्वेज, मैट्रिक्स लैंग्वेज, और दूसरी को एम्बेडेड लैंग्वेज, जो लो वैरायटी होती है, एम्बेडेड लैंग्वेज। तो एक मैट्रिक्स होगी, एक एम्बेडेड होगी। आप क्या करोगे, अपने लोगों के साथ क्या बोलोगे, लोकल लोगों के साथ ये इस्तेमाल करोगे। जब ऑफिशियल पर्पस में किसी बॉस के सामने, उस्ताद के सामने, स्कूल में प्रोफेसर हो, यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो ये फ़ौरन इसी में शुरू हो जाओगे। सो दीज आर द वैरायटीज लैंग्वेज के अंदर।